میں ہوں آپ کا میزبان سنہرے لوگ میں سید عبدالباسط. ہمارے درمیان آج اوورسیز شخصیت محترم جناب معروف نیوز کاسٹر، معروف نعت خواں، حمد و نعت خواں محترم جناب سید اقبال سے آج ہماری ملاقات ہوگی. یا پاکستانی کوئی بھی ایسا ٹیلنٹڈ شخصیت ہو جو دنیا میں اپنا نام پیدا کر رہا ہو، وہاں برطانیہ میں ایک ایسی شخصیت جو حمد و نعت کی نہ صرف خدمت کر رہے ہیں بلکہ نیوز کاسٹر کے حوالے سے اور اس حوالے سے بہت ہی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کافی عرصے سے وہاں مقیم ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہے. السلام علیکم سید اقبال صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم اللہ کا شکر احسان. تو آپ کی پیدائش کراچی میں ہوئی؟ نہیں، پیدائش انڈیا میں ہوئی، بہار میں ہندوستان میں. اور بہت اس خوشی کے بعد کراچی آ گیا. اور پاکستان ہجرت کب کر کے آئے؟ 1954. اچھا، تعلیم آپ کی کہاں مکمل ہوئی؟ یہی ہوئی، پہلی جماعت سے میں نے یہی پڑھا. حاجی عبداللہ سر ہارون اسکول پاکستان چوک کے پاس تھا، وہاں پہلی جماعت میں داخلہ ابا نے دلایا. پھر ماڈل ہائی اسکول کراچی میں وہاں پڑھا. اپنی کتاب موزن انسانیت جو رومن انگلش میں، اس میں پوری ہسٹری لکھی ہے، وہی پڑھیے گا آپ. ماڈل ہائی اسکول میں پڑھا میں. پھر ڈی پی این اسکول جٹ لائن میں پڑھا. پھر اردو کالج سے بی اے کیا. پھر ایم اے پریویس لائبریری سائنس کیا کراچی یونیورسٹی. اور ریڈیو پاکستان میں نیوز پڑھنے کے لیے دسمبر 1970 میں میرا سلیکشن ہوا. سینٹرل نیوز آرگنائزیشن GNO. جی. تو سب سے پہلی نوکری آپ کی؟ پہلی نوکری میری کراچی پورٹ ٹرسٹ میں تھی. کراچی پورٹ ٹرسٹ. ماشاء اللہ. سید اقبال صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کب آپ کو نعت خوانی کا شوق ہوا اور کب آغاز کیا آپ نے نعت خوانی؟ اصل میں نعت خوانی کا آغاز تو 2007 میں ہوا اسٹارٹ. شوق مجھے بچپن سے تھا. آرام باغ کی مسجد میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تو وہاں نابینا حضرات آئے تھے اور وہ نعت پڑھ رہے تھے. وہ نعت یہ سنا رہے تھے: سنتے ہیں قیامت میں جب دھوپ کڑی ہو، کیا کہنے امت تیری زلفوں کے سائے میں کھڑی ہوگی. سبحان اللہ. یہ میں نے نعت سنی تو مجھے بہت شوق ہوا. میں نے ابا سے کہا کہ یہ نابینا حضرات ایسے نعت پڑھ رہے تھے اور میں نے بھی تھوڑی سی ہم سنائی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو ابا بڑے خوش ہوئے. مجھے یاد ہے کہ شاید 8 آنے پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے. میری ہمت افزائی. اس زمانے میں 8 آنے بڑی بات ہے. جی. تو لیکن میں بن گیا دسمبر 1970 سے ریڈیو پاکستان کا نیوز ریڈر. تو نعت کا شوق وہی رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے اور موقع نہ دے یہ نہیں ہوتا ہے. جب میں نیوز کے شعبے سے ریٹائر ہوا ARY سے، ویکٹون TV سے جو لندن میں بیس تھا، تو پھر نعت کے شعبے میں 2007 میں آیا اور ARY QTV نے تقریباً 15 CDیاں اور DVD ریلیز کی. اور یہی آرٹس کونسل میں 2007 میں اس کا افتتاح ہوا. یہ میں نے اپنی کتاب موزن انسانیت میں جو رومن انگلش میں ہے اس میں بھی لکھا ہے. سید اقبال صاحب، یہ بتائیے کہ آپ جب بچپن میں صبح اٹھنے میں دیر کرتے تو آپ کے کانوں میں کوئی بزرگ کی آواز آتی تھی، تو وہ ایک یاد ابھی تک ہے آپ کو؟ وہ کیا قصہ تھا؟ وہ آواز یہ آتی تھی. میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بچپن میں ایسے ہی ہوتا تھا: اٹھ جاگ مسافر بھور بھئی، کیوں سوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے. اس قسم کیا کہنے. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا والدین نے کچھ کہا یا آپ میں خود میں صبح اٹھتا تھا، نیا جذبہ پیدا ہوا؟ ابا اٹھا دیتے تھے. ایک بار آواز دی نہیں اٹھے تو ابا جو ہے نا پانی کا گلاس پھینک دیتے تھے. میں اٹھ جاتا تھا اور پھر مجھے آرام باغ لے جاتے تھے. صبح کی نماز پڑھاتے تھے اور آرام باغ میں وہ بھی بھاگتے تھے، میں بھی بھاگتا تھا چاروں طرف. ماشاء اللہ. کیا کہنے، وہی سب یادیں ہیں. جی ماشاء اللہ. اب اپنے والدین کے بارے میں کچھ ایسی چیز یادیں آپ سے وابستہ ہیں جو والد یا والدہ کا ہے تو ہمیں شیئر کریں ہمارے ناظرین کو. بس ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ سچ بولو اور محنت کرو اور نماز ضرور پڑھو، یہ کہتے تھے. اور میری والدہ نے مجھے نماز پڑھنی سکھلائی. اللہ ان کو جنت میں جگہ. کیا کہنے. سید اقبال صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان کب جوائن کیا؟ کیا
अचानक कोई हादसाती तौर पे ज्वाइन किया या कोई एप्लीकेशन डाली थी या बाकायदा जॉब अप्लाई किया था? वो हुआ ये था कि एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी PIA का एक्सेसिव कंसर्न महकमा था, उसमें मैं ऑफिस सुपरेंट था, बाद में मैं एडमिन ऑफिसर भी हुआ। तो कराची एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। मेरी आदत थी कि जंग अखबार ज़रूर पढ़ता था, बंस रोड से एक आने का अखबार मिलता था, तो मैं ज़रूर अखबार पढ़ता था, ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। तो रेडियो पाकिस्तान में जो जनरल मैनेजर थे, उनका नाम मैं भूल गया, किताब में मैंने लिखा है, उनके बेटे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो आजकल अमेरिका में है। उन्होंने कहा कि इकबाल तुम ये जो अखबार पढ़ रहे हो, लंच आवर में मैं पढ़ता था, तो ऐसा लगता है कि तुम खबरें पढ़ रहे हो। तो उन्होंने फिर अपने अब्बा के पास भेजा रेडियो पाकिस्तान में। तो यहाँ AD अब्बासी साहब थे और लोग भी थे, वो नीलोफर अलीम के शौहर थे जो अब्बासी साहब थे, और लोग भी थे। तो वहाँ जनाब मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद ऑडिशन हुआ 70 आदमियों में से मैं दो, एक असगर मेहंदी सीनियर प्रोड्यूसर थे हमारे, एक मैं, वो सेलेक्ट हुए थे। तो असगर मेहंदी तो प्रोड्यूसर हो गया, मैं खबरों से वाबस्ता रहा। अच्छा, आपने रेडियो पाकिस्तान आलमी सर्विस में भी खिदमत अंजाम दी, वो तजुर्बा कैसा रहा? आलमी सर्विस में काफ़ी पब्लिक बहुत आती थी। यावर मेहदी साहब थे और मीद अनवार साहब थे, जमील ज़ुबैरी साहब थे, और भी एक और ज़ुबैरी साहब भी थे, हमारे मैनेजर थे। तो उसमें जैसे परवीन शाकिर साहिबा हैं, जैसे बड़े बड़े नाम हैं, वो वर्ल्ड सर्विस में मिलने आते थे। और रेडियो पाकिस्तान जो सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से खबरें पढ़ता तो सिर्फ खबरें पढ़ी और चले आए। लेकिन वर्ल्ड सर्विस, एक्सटर्नल सर्विस में लोग आते थे मिलने के लिए, इंटरव्यू होता था, उनसे मुलाकातें होती। माशाअल्लाह। जैसे असद मलिक साहब हुए या और लोग हुए, बड़े बड़े लोग, वो आया करते थे, उनसे मुलाकातें होती थी। हरीम आरिफ साहबा थी, इफ्तिखार आरिफ साहब आते थे, तो उनसे मुलाकात हुई। माशाअल्लाह। अच्छा सैयद इकबाल साहब, आपने बरतानिया में माशाअल्लाह काफ़ी अरसा रहे, तो वहाँ निजी चैनल से भी प्रोग्राम्स किए आपने, वो उस बारे में हमें कुछ बताइए हमारे नाज़रीन। मैं सबसे पहले तो BBC में गया जून 93 में। तो BBC के रज़ाली आबिद साहब, रशीदुल्लाह खान हुए, माशाअल्लाह, अर्जुन शाहीन हुई, और इन लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प की, मदद की, और ये कि काफ़ी प्रोग्राम दिए। तो इसमें मैं रेडियो एशिया लंदन खुल गया, तो रेडियो एशिया से मैं ख़बरें पढ़ने लग गया। और रेडियो एशिया में फिर एक साहब ढूंढते ढूंढते आए कि भाई वो ARY जो है वो खुल रहा है, वो पाकिस्तानी चैनल था, तो उसको ARY हाजी अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम के नाम पर बनाई गई, उसको ख़रीद लिया गया। तो मुझे बुलाया गया, मैं पार्क रॉयल गया ईस्ट लंदन से। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे थे, तो वहाँ हुसैन लवाई साहब थे, आसिफ इकबाल थे जो क्रिकेटर थे, सलमान इकबाल साहब थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने ये पढ़ा कि मैं ऐसे पढ़ता था, ये रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस है, अब आप सैयद इकबाल से खबरें सुनिए। बस इसी पर ही उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट हो गए, कल से आके आप उर्दू खबरें पढ़ेंगे। ये क्या कहने जनाब। अच्छा सैयद इकबाल साहब, आपकी आवाज़ में नगमा जहाँ से तासुब मिटाते चलो, उखवत का हिस्सा बनाते चलो, इस बारे में हमें कुछ बताएं। ये काफ़ी मकबूल हुआ था। हाँ, ये काफ़ी मकबूल हुआ, और मैं शायर नहीं हूँ, नाम मेरा इकबाल है, लेकिन ये नगमा मैंने लिखा, बहुत प्यार से लिखा, और एक हम लिखी। बाकी पूरी किताब में वो अशार हैं, वो नात व हमद हैं जो मैंने पढ़ी है, लिखी हुई किसी और की। मैंने किताब पूरी खुद से नहीं लिखी है, बल्कि जो मैंने नात पढ़ी है वो है। तो हुआ ये कि हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड नज़ीर साहब ने किसी महफिल में बुलाया, तो यहाँ से डॉक्टर दानिश भी गए थे और लोग भी गए थे, सलीम साफ़ी साहब भी आए थे पिंडी से। तो उन्होंने कहा था कि वो इंसानियत का नगमा सुनाइए, तो ये मैंने सुनाया है। जहाँ से तासुब मिटाते चलो तुम, उखुवत का नगमा सुनाते चलो तुम, कदूरत की जुल्मत करो दूर, यकसर चरागे मोहब्बत जलाते चलो तुम, तासुब हसद और बुग़्ज़ो कदूरत सदा इनसे दामन बचाते चलो तुम, खिले जिनकी शाखों पे उल्फत की कलियां, चमन में वो पौधे उगाते चलो। सुभान अल्लाह। ये सुना है मैंने, बहुत खुश हुए, और ये अक्सर सुनाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, ऊबर टैक्सी में भी जा रहा हूँ या किसी के घर गया हूँ, तो ये नगमा मैं ज़रूर सुनाता हूँ, और बच्चों से अच्छे तरह से बात करता हूँ। क्या कहें। अच्छा सैयद इकबाल साहब, ये बताइए कि रेडियो पाकिस्तान के वाबस्ती रही कराची में आप, और किन किन से यादें वाबस्ता हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और या प्रोडक्शन डायरेक्टर
वहाँ के रहे तो हैं। वो मुझे किताब में लिखा है, किताब दीजिए तो मैं उससे पढ़ कर बतला दूंगा किन किन से मुलाकात हुई। हाँ, कुछ अहम नाम बताइए, बस दो चार नाम मैं क्या आपसे बतलाऊँ, बड़े सारे लोगों को। दूसरा सवाल कर लीजिए तो बाद में फिर मैं अब जैसे इसमें मैंने ये लिखा है कि ये देखिए, रेडियो पाकिस्तान सोमालियन सर्विस कराची स्टैंडिंग लेफ्ट टू राइट, मिस्टर सुल्तान गजनबी, सैयद इकबाल, शकील फारूकी, हयात अजीज़ नकवी एंड न्यूज़ कास्टर असमत जहरा। क्या बात। तो और भी बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें रही हैं वहाँ। यावर मेहदी से भी मुलाकात रही। मेहदी बड़े अच्छे, बल्कि मेरे मोहसिन हैं कि जब मेरा वीज़ा लग गया था यूके का तो उन्होंने कहा BBC में आप रज़ा रियादी से मिल लीजिएगा, उन्होंने पर्ची दी थी। क्या बात है, वो तो हमेशा लोगों के लिए मैंने किताब हमेशा मदद करते थे, बड़ा ख्याल करते थे, दोस्त थे। और मैंने उनके साले साहब जो है ना, बहनोई साहब, उनकी भी मैंने मदद की थी नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में। क्या बात। तो वो अलग बात थी, वो तो मेरी आदत है। खैरुन्नास मयनफउन्नास, बेहतर इंसान वो इंसान होता। क्या कहने। अच्छा, आपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत कामयाब रहे और नाट और बच्चों के प्रोग्राम भी बहुत किए, इस बारे में कुछ बताइए हमें। जो सच्ची बात है वो ये कि यूट्यूब और मेरा फेसबुक वगैरह वो मेरे नवासे ने बनाया है। मुझे इस सिलसिले में इतनी मालूमात नहीं है, मैं टेक्निकल हैंड हूँ। मेरा काम कोई और साहब करते हैं, उनको मैं पेमेंट करता हूँ, वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये है कि मतलब वो कामयाबी से चल रहा है वो। अच्छा, आप पाकिस्तान एसोसिएशन जापान के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे और काफ़ी अर्सा रहे, वहाँ के खिदमत कैसी रही आपकी? वहाँ बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एसोसिएशन जापान का पहला प्रेस सेक्रेटरी मैं जब बना हूँ 1988 में, कि बेनज़ीर साहब आ रही थी, तो पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर थे हुसैन खान साहब और सेक्रेटरी थे वो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे रईस सिद्दीकी साहब, वो 1973 से थे वहाँ। तो उन्होंने मुझे ढूंढ लिया कि इकबाल साहब एक आए हुए हैं यहाँ और न्यूज़ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रेस सेक्रेटरी की ज़रूरत है, बेनज़ीर साहब आ रही हैं, इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम करना है। तो जब मैं प्रेस सेक्रेटरी हुआ तो वहाँ यह है कि इस्लामिक सेंटर हम लोग जाते तबलीग करते थे कि भाई आप लोग ओवर स्टे हैं और मेहनत से काम करें, अपने पाकिस्तान में घर वालों को पैसा भेजें, ये होता था। अच्छा, आपने एम प्रोडक्शन की जानिब से भी बच्चों की नज़में और काफ़ी बच्चों के प्रोग्राम किए। एम प्रोडक्शन था ये हाजी अनस तैयब साहब का जो हॉस्पिटल है ना, कौन सा हॉस्पिटल है? मुस्तफ़ा अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट। चौथे फ्लोर पर बच्चों की नज़में वगैरह जो थी, रज़ा अली आबदी साहब ने जो लिखा और पाकिस्तान के कौमी तराने, वो सब ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई माशाल्लाह। फिर वीडियो जो है ना ARY ने अच्छा वॉइस ओवर किए। जी, वॉइस ओवर से वहाँ हुई थी और कुछ वीडियो भी एम प्रोडक्शन ने बनाई थी। सैयद इकबाल साहब, आप ये बताइए, FM रेडियो लंदन और रेडियो एशिया में भी काम किया, कैसा तजुर्बा रहा, क्या देख रहे हैं आप? आज याद आ रहा था कि अताउल्लाह ईसा खेलवी मरहूम हो गए, उनका इंतकाल हो गया। मुझे याद आया कि आज ही हाँ आज हुआ है, जैसे आप घर से निकल रहे थे। हाँ, तो 98 में 99 में पहला इंटरव्यू रेडियो एशिया में मैंने लिया था। वो आए हुए थे वहाँ, फॉरेस्ट गेट ईस्ट लंदन में रह रहे थे। पहला इंटरव्यू मैंने लिया था वहाँ, उनसे मुलाकात वहाँ हुई। क्या कहने? फिर यहाँ मुलाकात होती रही। इस तरह बहुत सारे आपने यादगार इंटरव्यू लिए? जी किए। तो कुछ शख्सियात, फनकार या शख्सियात के नाम याद हैं? मुलाकातें तो वहाँ जुनैद जमशेद मरहूम से भी हुई, यहाँ ARY में भी होती रही। हज के मौके पर 2007 में मैंने हज किया, तो जब भी होती रही। तो और अभी अचानक आपने बतलाया तो मैं याद नहीं आ रहे हैं कि कितनी तमाम बड़ी शख्सियत से मुलाकात तो रही है, जो हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा इल्म वाले, टैलेंटेड लोग। जी, टैलेंटेड लोग, मतलब वो लोग जो पाकिस्तान की खिदमत मुख्तलिफ शोबों में अंजाम दे रहे हैं। जी, ये बहुत अहम बात है। हाँ, यहाँ से जाते थे वहाँ तो मुलाकात होती। आप PIA यूनियन, हमदर्द पब्लिक स्कूल, एडमिन ऑफिस, NCC कराची और अबू धाबी में भी रहे जी, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया और हवाले से भी किया। मैं ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहा हूँ। तो इस बारे में हमें बताएं कि कैसा तजुर्बात रहे हैं यहाँ पर इन इदारों में? मुख्तसर यही है कि हमदर्द पब्लिक स्कूल का पहला सेक्रेटरी रहा राशिदा साहिबा, जो हकीम सईद साहब
मरहूम की बेटी थी, उन्होंने मुझे रखा, और आर.यू. ज़ुबैरी, रफ़ीउज़्ज़मान ज़ुबैरी जो हमारे एडिटर थे CNO में रेडियो पाकिस्तान, वो हमदर्द में थे, जनरल मैनेजर, उन्होंने मुझे रखा। तो इतनी दूर था हब में कि मैं रेडियो पाकिस्तान में ख़बरें पढ़ने के लिए नहीं आ सकता, तो आखिर मैंने वहाँ छोड़ दिया। और फिर IAL में, जिसमें सरमद साहब हुआ करते थे, जो मेरे डायरेक्टर थे, तो सरमद साहब मेरे जनरल मैनेजर थे, तो मैं वहाँ एडमिन ऑफिसर था, क्लिफ्टन के पुल के नीचे था। तो फिर कोई आदमी वहाँ जापान में, उसने धोखा किया, वो चला गया, तो वो हवाले का भी काम करता था, प्लस प्रेस सेक्रेटरी था, तो वो चला गया जनाब, छोड़ के, बल्कि पैसे लूट के ले गया। तो मुझे उन्होंने दोबारा बुलाया, तो मैं IAL रिज़ाइन दे करके मैं दोबारा जापान, क्या कहने, क्या तो कहने। IAL किस तरह से। और अबू धाबी में भी रहे आप? हाँ, अबू धाबी में कर्नल इदरीस साहब थे मरहूम, उन्होंने अबू धाबी में मेरा ट्रांसफ़र किया था, तो मैं वहाँ था। और वहाँ जो एक अदाकारा थी ना, उनसे भी मुलाकातें रही, ज़हीन ताहिरा, फिर ज़हीन ताहिरा और हुमायूं सईद, उनके साथ लंदन में एक ड्रामा था इंतहा प्यार की, इंतहा प्यार की, हाँ, उसमें मैंने कुछ 7 एपिसोड में काम किया, शौक़ था मेरा। तो यूट्यूब में लगा हुआ है इंतहा प्यार की पाकिस्तानी ड्रामा, तो वो थोड़ा सा ऐसे शौकिया किया था। आप प्रेस सेक्रेटरी पाकिस्तान एसोसिएशन के भी रहे, उस हवाले से हमें कुछ बताएं। उस हवाले से यही है कि जो इमिग्रेशन वगैरह में पकड़े जाते तो उनको जाके छुड़ाता था, और यही कहता था कि भाई आप काम सही तौर से करें। तबलीग भी होती थी इस्लामिक सेंटर टोक्यो में, और उसके बाद मुझे टिकट दे करके, रिटर्न टिकट दे कर रईस सिद्दीकी साहब ने और हुसैन खान साहब ने बुलवाया था मुझे लंदन से, तो मैं वहाँ गया, हमदो नात पढ़ी मैंने। उसके बाद जब स्टेज से मैं उतरा हूँ तो मुझे दोबारा बुलाया, इकबाल साहब 12 साल पहले आपने क्या देखा जापान में? तो मैंने उनको एक बात कही कि 12 साल पहले सारे के सारे ज़्यादातर पाकिस्तानी 99% ओवर स्टे रहते थे और काम करते थे। आज सबके पास जापानी पासपोर्ट है, लेकिन कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। वो शिया है, वो सुन्नी है, वो बरेलवी, वो देवबंदी, वो पंजाबी, वो पठान है, यूँ लड़ते। ये मैंने कहा, इसका मुझे अफसोस है। नहीं, मतलब ये चीज़ दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तानी जो कर रहे हैं, और वो समझते हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस। बिल्कुल बदनामी। खुदा से डरे, अल्लाह ने इंसान 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 फरमाया है, कहीं का भी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, पठान हो, पंजाबी हो, इंसान है, अल्लाह का बंदा, प्यार करो, मोहब्बत करो, नहीं तो तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी। मैं नात के आजकल जो है ये बहुत गुनगुना रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। सुभान अल्लाह, क्या कहने। सैयद इकबाल साहब, आपने माशाल्लाह बहुत ही एक लंबा अरसा सर्विसेज न्यूज़ कास्टर के हवाले से, हमद व नात के हवाले से आपका बड़ा काम है। इसमें ये बताइए कि पाकिस्तान के इतने हमद व नात के शोरा और नात खान गुज़रे हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं? इंडो पाक समझ लें, हिंदुस्तान में भी कह सकते हैं आप, पाकिस्तान में भी बड़े नाम गुज़रे हैं। कोई एक दो नाम आप बतला दीजिए अगर आपको याद है। नहीं, नात के हवाले से तो हम जानते हैं, चिश्ती मरहूम हुए, चिश्ती मरहूम हुए, हाशमी साहब हो गए, सईद हाशमी मेरे दोस्त थे। जी हाँ, बहुत अच्छे। 2007 में जो आर्ट्स काउंसिल में मेरी तकरीब नुमाई हुई थी, सईद हाशमी भी आए। वही ज़फ़र कासमी साहब हैं। वही ज़फ़र कासमी, तो क्या कहने, माशाल्लाह। उनको मैं ले जाता था 1978-77 में एयरपोर्ट ले जाता था, और खुर्शीद अहमद नाथ खां को ले जाता था, और सिद्दीक़ इस्माइल साहब, हाँ, फिर सहरवर्दी साहब, वो भी आते हैं, लंदन आते हैं। उनके अब्बा के साथ तस्वीर है, इस किताब में मैंने लिखा है, वो तस्वीर छापी है। तो सहरवर्दी साहब वहाँ भी आते हैं, और सबिउद्दीन रहमानी, ताबिंदा लारी ने मेरे इस नात की बहुत तारीफ़ की। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, का उजाला नामे मोहम्मद, हैं यूँ तो कसरत से नाम, लेकिन
हैं यूं तो कसरत से नाम, लेकिन सबसे है प्यारा नाम सुभान अल्लाह, मोहम्मद। ये सुभान जब अल्लाह। ARY ने रिलीज़ किया तो साबिता लारी पहली खातून थी जिन्होंने कहा इकबाल साहब बहुत अच्छे तरह से पढ़ा, उन्होंने ये बात। क्या कहने। अच्छा, वो एक हमारी नात खान लंदन और अमेरिका में भी जो बहुत काफ़ी शोहरत याफ्ता हैं, उनसे भी बड़ी मुलाकात रही होगी, उनकी भी नातें मशहूर हुई हैं। लंदन में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। फिर एक नात खान मरहूम हो चुकी हैं, तजल्ली। अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो बहरहाल आपसे बहुत अच्छी मुलाकात रही। अब ये बताइए, आपने बहुत सारे ममालिक के दौरे किए, इनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, भारत, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, तुर्की, दुबई, अमेरिका शामिल हैं। सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा किस मुल्क में आया जो लगा आपको कि मुझे बहुत अच्छा लुत्फ़ आया और काम करने का जो रिज़ल्ट भी अच्छा हो और आपको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ काम सही होता है? सबसे ज़्यादा अच्छा जापान टोक्यो में लगा, उसके बाद इंग्लैंड लंदन। क्या बात। बाकी ममालिक में बहुत मसरूफियत है, बहुत आफाधाफी है, और लंदन और UK ठीक है। मैंने अपनी किताब में लिखा कि शिराजी ने शेख शिराजी, उन्होंने ये लिखा कि मैं दुनिया के 35 ममालिक न मालूम कहाँ घूम करके मैं ईरान के शहर शिराज में रहने लगा। क्या मैंने लिखा कि मैं सारी दुनिया जो घूमा, सारी दुनिया तो नहीं, 22-23 ममालिक घूमा, तो मुझे लंदन अच्छा लगा, ये मैंने लिखा है। गुनगुनाने का और गाने और नगमे गाने का बहुत शौक़ है, तो हमें अपनी कोई पसंदीदा कोई नगमा या गीत कोई सुनाएं तो ताकि याद ताज़ा हो जाए। आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो नौजवान नस्ल आ रही है हम्द और नात में, तो चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उस हवाले से कोई पैगाम आप देंगे आने वालों को कि भाई। बड़ा तल्ख तजर्बा है। जब मैं नात के शोबे में आया तो मैं अभी भी देखता हूँ कि नात पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, नात पढ़ते हैं लेकिन लड़कियों से उनसे वास्ता कर रहे हैं, और नात पढ़ने के पैसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं कि अगर पैसे न मिलें तो नात पढ़ने नहीं जाएंगे। मैंने अपनी किताब में यही लिखा है कि अल्लाह ताला नात खानों को इतने पैसे दे, इतना गनी कर दे कि नात पढ़ने के पैसे नहीं दे। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तानी निजात लंदन में मुकीम मोहतरम सैयद इकबाल साहब, मारूफ नात खान भी हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं, और हमारी बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही। सैयद इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारे चैनल को सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह अगली शख्सियत के साथ होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान।